بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم لنگا۔ آج دو تین موضوعات پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر ہمارا جو مقصد ہوگا آج یا مین پوائنٹ ہوگا وہ بانی تحریک انصاف، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہوں گے۔ آج چونکہ الیکشن قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان بہت زیادہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور گزشتہ روز اور آج کوئٹہ، پنجگور، نوشکی، گوادر، تربت، جیونی، ڈیرہ بگٹی، کلات، خاران، ان تمام علاقوں میں دہشت گردوں نے مختلف کاروائیاں، کہیں انتخابی دفاتر کو نشانہ بنایا گیا، کہیں انتخابی ریلیوں کو نشانہ بنایا گیا، کہیں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے گھروں پر دستی بم پھینکے گئے۔ یہ شکر ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی اموات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ چیزیں جس علاقے میں ہو رہی ہیں وہاں حالات کشیدہ ہیں، اور ان کا زیادہ تر کا تعلق اور علاقہ جو ہے وہ بارڈر جو ہے، سرحدیں وہ ایران سے ملتی ہیں، ایرانی بلوچستان سے ملتی ہیں، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو۔ اب ایسی صورتحال میں جب بلوچستان، اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی کچھ مسائل ہیں، انتخابی ریلیاں بھی مشکلات کا شکار ہیں، اور مشکلات تو وہاں پورے پاکستان میں جو ہیں کہ تحریک انصاف کو نہ تو ریلیوں پہ حصہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ جلوس نکالنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور انہیں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر روک دیا جاتا ہے۔ آج سوابی میں ہوا، چارسدہ میں ہوا، جبکہ دوسری طرف آج ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے ایک کر و فر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ پاکستان بھر میں لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ انہیں بھی پوری اجازت ہے انتخابات میں حصہ لینے کی۔ ہمارے نگراں جو وزیر اطلاعات ہیں ماشاءاللہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ صرف جھوٹ بولتے بھی ہیں بلکہ اس پہ قائم و دائم بھی رہتے ہیں، اور اب تو کہیں سے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ انہیں کہیں ایک بہت ہی قیمتی پلاٹ بھی عطا کر دیا گیا ہے، تو اس کا جواب تو وہ خود دیں گے کہ یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان پر ایک الزام آیا ہے۔ ہمارے ہاں جب گفتگو ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، بہت سی باتوں کی، تو اس میں کرپشن کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اب گزشتہ دنوں ایک چھوٹا سا، ویسے تو چھوٹی سی خبر تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت بڑی خبر ہے کہ نگراں وزیر صحت ہند کے جو نگراں وزیر صحت ہیں، انہوں نے صوبائی سیکٹری صحت کی ایک سمری کو منظور کرنے سے انکار کیا، آگے بڑھانے سے انکار کیا، اور وہ سمری ایک این جی او کے لیے تھی کہ اسے 2.27 ارب روپے سے زائد سالانہ کی بنیاد پر 10 سال کے لیے مسلسل دینے کی منظوری تھی، اور جب انہوں نے سیکٹری ہیلتھ سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جو ہماری این جی او ہے یہ وہ کام کر رہی ہے، یقیناً کر رہی ہوگی، بہت اچھا کام کر رہی ہوگی، اور سالانہ 2.25 ارب روپے سے زائد اسے دیے جائیں، تو کیا وہ اتنی اسٹیبلش این جی او ہے؟ کیا اس کا کام سیلانی سے زیادہ ہے؟ کیا اس کا کام عبدالستار ایدھی کی ایدھی فاؤنڈیشن سے زیادہ ہے؟
अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर ये गलत काम है और गलत तरीका कार इख्तियार किया गया। ये एक छोटी सी मिसाल है जो एक वजीर ने, निगरां वजीर ने उसे नाकाम बनाया। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, कुछ सियासी सर्वेज चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, सर्वेज आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने और इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत है, मां सिवाय उसके जिसका किसी भी तरीके से ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई या इमरान खान से हो। और अगर हम कराची की हद तक देखें तो उसमें अल्ताफ हुसैन या एमक्यूएम लंदन को, इन्हें इस मुल्क में सियासत करने और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की कोई इजाजत नहीं। अब ये बात हमारे लिए बहुत अजनबी है, अचंभे की सी बात है कि क्यों, क्या हुआ कि इमरान खान, जिन्हें पहले 10 साल की सजा हुई, फिर 14 साल सजा हुई, अब 7 साल सजा हो गई, साइफर हुआ, तो शखाना हुआ, अब आज तो बहरहाल हम अखलाकी पस्ती और गिरावट की उस इंतहाई पस्ती में चले गए जहां शायद जो सिविलाइज कल्चर्ड मुआशरे हैं वो इस मौजू पर सोचते भी नहीं, लेकिन हम दूसरों की तजलील और तज़हीक करने के लिए, और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं किसकी ईमा पे कर रहे हैं, हमारी अदालतें क्यों इस हद तक गिर चुकी हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं कि हम जो फैसला करने जा रहे हैं या फैसला कर रहे हैं या जिस तरह केस को हम चला रहे हैं वो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अब एक गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से केस चलाया जाए और मुल्जिमान को सफाई का मौका भी ना दिया जाए, जैसा कि साइफर केस में हुआ कि साइफर केस में इंतहाई तेज रफ्तारी से और बर्क रफ्तारी से पाकिस्तान की तारीख में कभी सजा इतनी तेजी से नहीं मिली जितनी तेजी से इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को या अब बुशरा बीबी को दे दी गई। और इमरान खान पर तो मजीद 200 केसेस हैं जिसमें 9 मई को उसमें शामिल कर दिया गया है और 9 मई के वाकयात, अब 9 मई के वाकयात अगर हम शामिल करें तो उनकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और किसी ऐसे कमीशन से तहकीकात हो, किसी ऐसे फोरम से तहकीकात हो जिसकी तहकीकात पर कोई उंगली ना उठा सके। हमारे यहाँ तो वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा कभी किसी मज़ाहिया प्रोग्राम में हमने कभी सुना था जब अपने बचपन में कि जी पाकिस्तानी पुलिस तो एक हाथी को पकड़ के ले जाए कि, और 3 दिन के बाद जब वो 3 दिन के रिमांड के बाद बाहर आए तो वो कहे मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये तहकीकात का तरीका ये है और इस तरह हमारी पुलिस कर रही है और करती रही है। और इस तरह जो तहकीकात हो रही हैं, जैसे हमारे मुल्क में हुआ वाकयात चल रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरह रेड कारपेट दिया गया, एक डिक्लेयर्ड मुजरिम, सजा याफ्ता शख्स को किस तरह लाया गया, किस तरह उनकी बायो, इवन जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक्स कैसे कराई गई, ये पूरी कौम ने देखा। और यही हमारे जो अदालती निज़ाम है, अदालत निज़ाम इंसाफ है, उस पर काला धब्बा है, स्याह धब्बा है। फिर हम देखते हैं कि 2 साल पहले जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम और हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया तो एन उस दिन उन्हें ये ओहदा मनसब दिया गया, एन उस दिन उन्होंने हलफ उठाया जिस दिन उन पर अरबों रुपए की करप्शन पर फ्रेम चार्ज होना था और फर्द जुर्म आयद होनी थी। यकीनन हम लोगों के लिए काम करते हैं, प्रेशर में आकर काम करते हैं और वही प्रेशर आज हमें नजर आ रहा है। तो क्या हम सिर्फ डील करने के लिए हैं, जाती मफादात के लिए डील करने के लिए हैं? क्या हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, हमारे लीडरान हैं, वो सिर्फ इसलिए सियासत में आते हैं कि वो सेल्फ गेन करें, ये मुल्क तबाह होता है हो जाए, बर्बाद होता है हो जाए, इस मुल्क की अवाम की जिंदगी जो है वो बेशक बेहतर ना हो, लेकिन
वो अपने मजे करें, वो एक साइकिल से आए, साइकिल पे आए सियासत में, और जब 5-7 साल 8 साल 10 साल के बाद वो वीगो डालों पे घूम रहे हो। क्या ये सियासत है? क्या ये तरक्की का मेयार है कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं मोटरवे घूम रही हो, हम बुरेवाला में एयरपोर्ट बना रहे हो, हम मानसेरा में एयरपोर्ट बना रहे हो? ये हमारे लेवल हैं। हमारे मुल्क की अवाम की तरक्की, बेहतर मुस्तकबिल के बारे में किसी ने नहीं सोचना, और ये सोचना हम तमाम लोगों का काम है, जो लोग जितने ज्यादा फैसला साजी में अहम तरीन हैसियत और मकाम रखते हैं। आज जब हम ये देखते हैं कि इमरान खान को सजा हुई, और यकीनन हम इस सजा को, अगर हमारी अदलिया आगे आजाद हुई, जैसे कि रिवायत है हमारे यहाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब हैं, या इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की के लिए, उसके मुताबिक तो लगता नहीं है कि हमें इंसाफ बर वक्त मिले। जितनी तेजी से सजा दी गई उतनी ही तेजी से इंसाफ मिले, लेकिन बहरहाल इंसाफ तो मिलेगा। अल्लाह के यहां देर तो है, अंधेर नहीं है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। हम इज्जतों के ना तो अमीन, हम नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हम तो इज्जतों के अमीन हैं। हम गटर में नहीं गिर सकते, गंदे गंदे गढ़ों में नहीं गिर सकते। हम अपने इख्तिदार की खातिर, हम अपनी कौम के नाम, इज्जत नफ्स, उसे बर्बाद नहीं कर सकते। और इस वक्त हमारी सियासत जिस गंदगी की, पस्ती की इंतहा में जा चुकी है, उसका तसव्वुर कम से कम हम नहीं कर सकते। अगर ये एक केस, जिसे हम गैर कानूनी निकाह का कहते हैं, और उस पर 5 साल सजा दे देते हैं, तो शायद हमारे सोचने वाले ये भी सोचें कि शादी के चंद माह बाद, 2-3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर बच्चा आ जाए तो क्या कहते हैं उसे, और उसकी वजह क्या हो सकती है। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप पर्दा पोशी करें, लेकिन हमारे यहाँ तो इंतहाई नंगा नाच नाचा जा रहा है कि आप लोगों की इज्जतों को उछाल रहे हैं, और इस हद तक चले गए हैं कि आप सिर्फ डील करने के लिए, आप मजबूर करने के लिए, कि आप हर उस हद से गिर चुके हैं जो शायद कभी शैतान ने भी सोची हो। मैं आज भी लोगों से यही कहूंगा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इस्लाह का मौका अता फरमाए, उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। और ऐसी सूरत हाल में, जो मौजूदा सूरत हाल में, जब एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ पूरी रियासती मशीनरी है, अपनी पूरी ताकत के साथ हमलावर है, उसमें हमारा क्या काम है, एक आम आदमी का क्या काम है, एक वोटर का क्या काम है। हमारा एक वोटर ही सबसे अहम है। हमारा एक वोट बहुत अहम है। हमारा वोट, हमारे खानदान का वोट, हमारे दोस्तों का वोट। सुबह सवेरे हमने 8 तारीख को निकलना है, और हमने हर उस जुल्म का जवाब वोट के जरिए देना है जिसे हम जुल्म समझते हैं। तो उम्मीद है कि हम इस वक्त, इस दफा, इस मर्तबा वोट के जरिए वो तब्दीली ले आएंगे जो इस वक्त हमारे इशारे बता रहे हैं, और वो लोग जो पूरी तरह लाडले बनकर इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो इसमें नाकाम व नामुराद होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।